I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Preparation, Paper 1 Financial Administration. So in this video, we are going to cover yet another previously asked question. This question was asked in May 2021 and the question was, describe the following terms as per Competition Act 2002. Competition Act 2002 के अनुसार कुछ एक टर्म्स को हमें डिफाइन करना था उस एक्ट के अनुसार। अब देखिए जो एक्ट में डेफिनेशन दी होगी वही आपको याद करनी है। definition asked for goods person services relevant product market, तो ये definition पूछी गई है। definition of goods person services relevant product market. So let's see the competition act 2002. This is first of all definition of goods. What do you mean by goods? As per competition act 2002 के अनुसार goods mean as defined in the sale of good act 1930 and includes products manufactured, processed or mined, debenture stocks and share after allotment. Next, in relation to goods supplied, distributed or controlled in India and goods imported into India. So this is a definition of goods that you have to remember as per Competition Act 2002. Second, as per this act, what do you mean by person? पर्सन का मतलब क्या है? व्यक्ति विशेष का मतलब क्या है? क्या वो एक सिंगल इंसान है? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है? क्या वो समूह है? देखते हैं। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, यस, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ फर्म, या फिर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। Any organization established by or under central state or provincial act or a government company as defined in the section 617 of the Companies Act of 1956. और पर्सन ये भी हो सकता है anybody corporate incorporated by or under the laws of country outside India, वो भी पर्सन के अंदर आएगा। A cooperative society is registered under law relating to cooperative societies. A person may be a local authority, a person may be every artificial judicial person not falling within any of the preceding subclasses. वो सारी की सारी ये 10 clauses 10 points दिए हैं। जब पर्सन की डेफिनेशन आपको लिखनी है, आपको ये 10 बिंदुओं पर केंद्र ध्यान देना है और ये इसको लिखना एग्जाम में। नेक्स्ट पार्ट था, पेपर में आया था रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, लेकिन रेलेवेंट मार्केट और रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है। तो हम रेलेवेंट मार्केट देखते हैं। रेलेवेंट मार्केट का मतलब क्या है? मींस द मार्केट व्हिच मे बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और द रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट और विद रेफरेंस टू बोथ द मार्केट्स। तो मार्केट के अंदर दोनों हो सकती है, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट भी और ज्योग्राफिक मार्केट भी। आइए देखते हैं रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट का क्या मतलब है। इट मींस अ मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया in which the condition of competition for supply of goods or provision of services or demand of goods or services are distinctly homogeneous and can be distinguished from the condition prevailing in the neighboring areas. And what is the relevant product market? It means a market comprising all those products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumer by reason of characteristics of the product or services, their prices and intended use. So this is the relevant product market. So I hope this is clear to you. तो relevant product market जो भी हमारी competition commission of India है वो डिसाइड करती है कि मार्केट्स के अंदर कंपटीशन फेयर रहे, तो इसलिए रेलेवेंट मार्केट जो कंसेप्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लीजिए कोई गांव है या अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें लेह लद्दाख, तो जो लेह के एरिया में जो लेह वाली हाइट है उस जगह के एरिया में जो मार्केट होगी वो हमें दिल्ली में नहीं मिल सकती, या हिमाचल के ही अंदर जो लोअर एरियाज है ऊना या बिलासपुर, दोनों की मार्केट में बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत फर्क है, प्रोडक्ट के डिमांड्स में फर्क है, प्रोडक्ट की सप्लाई वहां पे किस तरह का प्रोडक्ट जाएगा और ऊना में किस तरह का। मान लीजिए क्लोथ्स ही है, तो उस एरिया में उस क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई भी इंसान जो गर्मी वाले कपड़े हैं वो नहीं इतने मार्केट लगा के उसका फायदा है, क्योंकि वो बिकेंगे ही नहीं। हालांकि उसी जगह पे अगर कोई विंटर क्लोथ्स लगा दे तो वो बिक जाएंगे,
उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ इस तरह से, तो उसी के हिसाब से वहां पे मार्केट बनाई गई है, उसकी रेलेवेंसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से है, इसलिए उसको ज्योग्राफिकल मार्केट बोला गया है। और जो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट है, उसमें जो गुड्स है वो सर्विसेज वो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की होमोजेनिटी नहीं होती है, वो बेसिकली प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई उस पर बेस्ड होता है। तो एक बार फिर से देखिए डेफिनेशन, ज्योग्राफिकल मार्केट मींस कंप्राइजिंग द एरिया, इसमें एरिया की बात की गई है, in which the condition of competition are or supply of goods are homogeneous and they can be distinguished from condition prevailing in the neighboring area. So compare कर सकते हैं, उसमें conditions homogeneous होंगे, लगभग सेम कंडीशन उस पर्टिकुलर एरिया की रहेंगी। मान लीजिए अब मेघालय की बात करें, मेघालय में चिरापुंजी मौसम रेंज सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पे। अब वहां पे अगर कोई करे लगा दे, सीसीआई बोले कि वहां पे एयर कंडीशनर नहीं बिक रहे, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, अगर सीसीआई बोले कि वहां पे जो रेनकोट की कंपनीज है वो सिंगल कंपनी सिर्फ डकबैग के ही रेनकोट बिक रहे हैं, तो वहां पे कंपटीशन पे क्वेश्चन मार्क उठ सकता है, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, तो वहां पे मार्केट इस तरह से एस्टेब्लिश होनी चाहिए, मार्केट में हर कंपनी के प्रोडक्ट होना जरूरी है, वो सीसीआई का काम है, वो देखेगा अपने हिसाब से। मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसकी ज्योग्राफिकल लोकेलिटी के हिसाब से उसकी नीड अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, सर्विसेज का क्या अर्थ है? सर्विसेज मींस एनी सर्विसेज, एनी डिस्क्रिप्शन which is made available to potential users and includes the provision of services in connection with the business of an industrial or commercial matter such as banking, सर्विस मतलब बैंकिंग आएगा सर्विसेज में, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, चिट फंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मटेरियल ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल और अदर एनर्जी, बोर्डिंग, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, conveying of news or information and advertising. So these all are the part of services as per Competition Act 2002 के अनुसार सर्विसेज के अंदर ये सारी की सारी सर्विसेज आएंगी, बैंकिंग से लेकर एजुकेशन, फाइनेंस, रियल एस्टेट, इवन एडवर्टाइजिंग, लोडिंग, बोजिंग, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईच एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अनुसार। सो आपको याद रखने, दिस इज द क्वेश्चन हमने कर लिया, गुड्स, पर्सन, सर्विसेज, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, तो आपको ये सारी चीजें इस हिसाब से याद रखनी है। थैंक यू ऑल फॉर ए पेशेंट लिसनिंग।